Good evening, and I welcome you students for important topic of solids, defects in solid. देखो, in the defects of the solid, it is very important student that what type of defects are there in the solids. I have told you students there are two types of defects, Mm. but in our course we have point defects. ठीक है? Yes, sir. Course students we have point defect. That means you have seen in the crystal student there is a definite and regular repeating arrangement of the particles in three dimensions, but certain points, each point, when we give a representation, each point is a constituent particles. So what can happen students, that there can be impurities, there can be dislocation of these constituent particles, or these constituent particles can be missing when crystals are formed. So this is naturally that whatever crystals you have, there will be defects in the crystals. And we are Yes, sir. dividing the point defects into stoichiometric defects, non-stoichiometric defects, and impurity. How many types? Here I am written one. Mm. Note down stoichiometric defects. Number two, non-stoichiometric defect. Third, impurity defects. What we will Yes. study? Three types of defects. In our course, we have three types of defects, students. Stoichiometric defects. Mm. What do you mean by stoichiometric defects? We are saying in this defect, students, in this defect, they will not disturb the scattering of the compound. They do not disturb stoichiometry of the compound. ठीक है? Mm. Yes, sir. That will be maintained. So they will not disturb the stoichiometry of the solid. And second, this is the first one. Mm. Noted. Then Okay, second copy, one, copy, I'm copy. talking known. Because sometimes they ask you definitions. When the questions are given student in the form of assertive and reasoning. Assertive means facts. Facts is a Mm. statement. That's all. Either right or wrong. So if we have to learn all these things very clearly, definitions will be there. Mm. Then there will be reasoning, whether reasoning is supporting the assertive fact or not. So based on that, four choices, as you are familiar now. So what is the, therefore, if I write a line, if I write a word, it has a meaning, note down everything. Every word is important. I'm trying to tell you, Yes, our sir. brain should be very, very alert and active for answering these questions. Do you have energy? Yes or no? जल्दी Yes, बताओ, sir. Yes, एनर्जी है? sir. Yes, sir. हाँ तो क्रिएट करो, generate energy in you. Mind should be very active. I will not be able to answer any question in the paper otherwise. We have to think, student, very important. Non-stoichiometric defects. What do you mean by number two? Here I have written non-stoichiometric defects will do what, student? What will happen in non-stoichiometric defects if I am saying these are non-stoichiometric defects? Then what will be the result of that? They will be disturbing the, they will disturb the Mm. stoichiometry of the, they will disturb student or Yes, change, sir. the stoichiometry of the solid. Stoichiometry Of the song. of the solid, students. If I write something like NaCl, if I write KCl, student, or if you write AgCl, AgBr, these are stoichiometric. If our Mm. defects will be there, they will show some type of stoichiometric type of defect. Student, in this we are going to explain what type of. And when I say non-stoichiometric, for example, in the somewhere you have written iron 0.930. Now you can see, actually it should, if I write FeO, Mm. that means this is one, this is one, that means Fe2 plus and O2 minus. It Yes, maintains the sir. stoichiometry. But here the stoichiometry has been disturbed. Has it been disturbed? Yes or no? Yes, sir. So this is example of non-stoichiometry defect. They can give a statement in the assertive Mm. form, student, that this is non-stoichiometry defect. Anything can become a question. So pay attention, student. What happens?
In the case of Zn, you may have seen in the NCRT book, student, they have written Zn 1 plus XO. Yes, sir. What it means? There is excess of Zn. Hmm. X will vary. X will vary. Normal compound, what is the normal? ZnO. But instead of that, I'm writing Zn 1 plus XO. So what type of defect is this? Non-stoichiometry. Okay, sir. Non-stoichiometry. These are the Psychometry. examples. No psychometry. Yes, sir. Note down, students. Note down. 2 minutes, sir. Everything should be noted down. Keep on interacting with me, student. You are going for final paper. 1 month is left. Energy level should be high, and you will interact with me 1:1 every time, students. Doubt, you will stop me. Doubt, you will stop me. Yes, sir. Okay. Number 2, number 3, I have said, I have written impurity defects. What do you mean by impurity, student? Impurity defect. How many types I told you? 1, 2, 3. Hmm. Impurity means, for example, student, if you have a molten NaCl, okay, you Yes, sir. are adding some impurity in it. You are adding a little amount of impurity. Some foreign material like SrCl2. Hmm. So what will happen? The sodium ions are positively charged and strontium ions are 2 plus charge. Okay? Okay. So you are adding this in this. What will happen? If I add one Sr2 plus will displace how many Na plus? 2, because the Hmm. charge has to be balanced. But I'm trying Yes, to sir. tell you, charge has to be balanced. Student, pay attention. Question will be there on like this. If I have one strontium ion, student, then it will displace one Na plus. Okay, it will displace 2 Na plus Hmm. because this is plus 2. 2 into plus 1 is plus 2. How many? 2 plus. So one Yes, sir. strontium will take the place of one sodium and there will be one vacant space. What will happen then? There were two spaces of 2 Na Hmm. plus. Now this will displace 2. So there will be one vacant and one space will be taken by Sr2 plus. So there will be a vacancy also that will Okay. be created in such type of impurity defects. Can you see the vacancy? Yes, sir. Because there were 2 sodium ions. How many were Okay. there? 2. Na plus and Na plus. There were 2. And this is plus 2. So it will displace 2. And then 1, it will occupy 1. Then it will leave a vacant space. This is an example of impurity defect. Student, noted? 2 minutes, sir. Copy. Okay, note down. Note down. Yes, sir. Okay, student. Now we are going to discuss. So we said point defects can be classified into 3 types: stoichiometry, Hmm. impurity, and non-stoichiometry. Let us see what are the stoichiometry. These are point defects that do not disturb the stoichiometry of the solids. They are also called intrinsic or thermodynamic defects. Why they are called thermodynamic defects, student? Because this defect mainly comes on heating. What happens? On heating, student, what happens? When you heat, you are providing thermal energy. Energy. Yes, sir. Thermal energy. The result of this is, student, the result of this is that then some of the constituent particles can be lost. Hmm. So first one in this is vacancy defect. First example of stoichiometry is vacancy defect, student. This will happen in mostly non-ionic solids. Yes, sir. Important point to note down. Non-ionic solids will show vacancy Psychometry. defect. Yes, sir. Non-ionic solids. What are non-ionic solids? Mostly covalent solids will be there. Non-ionic solids. Hmm. What is the meaning of vacancy defect, students? Vacancy defect. Some of the here what is happening? Some of the lattice sites are vacant. Okay. Are vacant. देख रहे हो ये this atom, this particle, this is vacant. Can you see the Yes, vacant? sir. Yes, sir. Yes, sir. This site vacant. This missing.
the atoms are not there. So there are vacant sites. Okay. Vacant sites. These are the vacant sites, student. Can you see the vacant site in this? I can see, sir. Okay. They will give you a picture in the paper and they will ask you what type of defect is this. Then you have to identify. These are non-ionic solid. There are vacant sites. When certain constituent particles are missing, what is the result of this? What is the consequence of this, student? Important point. What will happen? They will ask the third point, that whenever certain particles are missing from the lattice point, but the stoichiometry has to be maintained. Stoichiometry has to be maintained, student. What will happen then to the density? That is an important point. Density will remain same, change, increase or decrease. What will happen to the density of the crystal, student? Density will increase, density will decrease of the solid, or will remain the same? Is a question in the paper now. Tell me, density, what is the density formula? Mass per unit volume. If particles have become less, mass will increase or decrease? Sir, decrease. Decrease. So density will increase. Decrease. ठीक है, नोट Yes, किया? sir. Yes, sir. नोट किया, यही तो क्वेश्चन आने हैं. Every word, every line will become a question in the paper, so pay attention. ठीक है, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी. किस केस में? इन विच केस वैकेंसी डिफेक्ट में. वैकेंसी डिफेक्ट में स्टूडेंट वैकेंसी विल डिक्रीज because certain, and when is this likely to happen? I told you on heating. On heating क्या होगा स्टूडेंट? बहुत many times स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में. On heating, what is the result of that, student? This will be, this on heating, what will happen? Certain particles will get more energy and they will move out of the lattice. Okay. You have a solid, you have heated it, what happens? More energy has been given, thermal energy, some particles will escape. So what will happen? There will be some vacancies. So on heating, student, what is possible? This can be developed. On heating, vacancy defect, ठीक है, can develop, student. बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ. सर सही है. ओके, नोट करो. ओके, बोलते रहो, चलते रहो और मेरे साथ अपनी एनर्जी को कायम रखो स्टूडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन बनेगी पेपर में, दिमाग लगाना. अदरवाइज वी विल लूज मार्क्स. मैं नहीं चाहता. आई डोंट वांट दैट यू शुड लूज 1 मार्क. इवन यू हैव टू गेट फुल मार्क्स, स्टूडेंट्स. लेट मी टेल यू. क्या होगा कि आई विल कॉल यू हियर फॉर 4 आवर्स. देन यहाँ पे 4 घंटे बैठे रहोगे और लगे रहोगे किताब खोल के. एक बात बता दूं, समझ गए स्टूडेंट्स? तो तुम्हें दिमाग लगाना है, कहीं भाग नहीं रहे हम. और एक एक वर्ड और एक एक लाइन को समझना है. एनसीईआरटी की एक एक वर्ड और वन ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन हैज टू बी अंडरस्टूड एंड वी शुड पे अटेंशन. आई विल डिकोड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द बुक्स. लेकिन तुम अपनी एनर्जी एंड अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग. यस सर. You have a pen, you have a pencil, you have a notebook, you have colored pens. तो नोट करिए फटाफट. इसी में क्वेश्चन आने हैं. फिर दिक्कत क्या है? फिर क्यों गलती करोगे? अब मैंने दोबारा लिखा, when some of the lattice sites are vacant, crystal is said to have a vacancy defect. Clear? Yes, clear sir. देखो, definition, explanation and applications and consequence of that. What will be the result of that, student? This results in decrease in density. Clear? Note किया? Yes, sir, clear. A defect can also develop when substance is heated. Due to increase in temperature of the solid, what happens? Certain particles, ठीक है, they will escape the lattice, crystal lattice. और क्या होगा? फिर कहाँ जाएंगे? बाहर चले जाएंगे. तो बस फिर ये हो जाएगा. यहाँ तक हो गया. चलो अब देखो, वैकेंसी डिफेक्ट्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव. दीज आर टेम्परेचर सेंसिटिव. दे डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. स्टूडेंट, वैकेंसी डिफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? फैक्टर पूछता है वो पेपर में, टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है? यस सर. तो टेम्परेचर के ऊपर उसका फार्मूला ये हमने एक बताया. ये आपके, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, वी हैव शोन द एनवी इज द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है? और ये टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्यूबी एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल
in the solid joules per mole or gas constant T. It can alter the thermal and electrical resistivity of the solid. Common physical properties like melting point, color, etc. can play. देखो, तो ये शो ही हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देयर विल बी मोर वैकेंसी डिफेक्ट्स. So number of vacancies will depend on the temperature. If I increase temperature too much, more vacancy defects will be there. Or agar if there will be vacancy defect, what will happen? It will alter the physical properties of the solids. जैसे उसका color भी change हो सकता है. Student, physical properties कौन सी होती है? Melting point, color, they can also change. Okay, sir. Noted? Noted? Copying the 2 minutes. हाँ, सब कुछ नोट करो एक एक वर्ड को. So these are the consequences, student, of, ठीक है, effect of temperature. Yes, sir. Effect of temperature on solids. So what you are generating, student? These were non-ionic solids I was talking about. तो vacancy defects में क्या हुआ? Physical properties change हो जाएंगी. ठीक है? Okay. Physical properties can be changed. Physical properties change. They are changed. Student. कौन सी properties? Physical. कौन सी हैं? Melting point, color, etc. They can vary. हो गया? आगे चलो. Yes, sir. हो गया. चलो, वेरी गुड. नेक्स्ट पर आ रहा हूं मैं. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं हम. अरे इंटरस्टिशियल क्या होते हैं? व्हाट फर्स्ट इज द मीनिंग. जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट. इसका मतलब क्या? इंटरस्टिशियल. व्हाट इज इंटरस्टिशियल? देखो, व्हेन क्लोज्ड पैकिंग टुक प्लेस देयर वर सम वैकेंट स्पेस, देयर वर सम वॉइड्स. तो वॉइड्स क्या होते हैं? उन्हें इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं. तो सम पार्टिकल्स कैन गो इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस इफ द साइज फिट्स. आपने देखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स आई डिस्कस्ड. और रेडियस रेशियो भी बताई थी. यस और नो? तो इंटरस्टिशियल जब कोई पार्टिकल, स्टूडेंट, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, स्टूडेंट, then what type of defect is called? This is called interstitial defect. क्या बन गया? Interstitial defect. तो what you are seeing, देखो ये पार्टिकल था ना, ये वेकेंट स्पेस है. दिख रही है वेकेंट स्पेस? Yes, दिख रही है. वेकेंट स्पेस है जो, इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस. Okay. इंटरस्टिशियल स्पेस है. ठीक है. Some particles are now occupying this position. ठीक है. Certain particles, they are, this particle, देख रहे हो ये कहां पर आ गया? ये इंटरस्टिशियल स्पेस पर आ गया. ये भी आ गया. Yes, sir. तो पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल स्पेस पर चले गए. Certain particles occupy the interstitial space. तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट मैं कौन सा डिस्कस कर रहा हूं? नॉन आयनिक कंपाउंड्स. Okay. ठीक है. ये सब नॉन आयनिक है. इसे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूं स्टूडेंट. तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हुआ कि देयर आर सम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इन द vacant spaces, the voids, the interstitial spaces. So what will be the result of that, student? The density will increase or decrease? जल्दी से बताओ. इसमें Yes, sir. what will happen to the density in the Increase, case sir. of interstitial defect? Density will increase, decrease or remain the same, student? जल्दी बताइए. 2 minutes. Let me think. अरे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है. मास बढ़ा के कम Yes, sir. हुआ. Sir, इसमें density will remain same, sir. क्यों? No, wait. No. Sir, the mass will remain. नहीं. It will increase, sir. It will increase. Increase, sir. हाँ? Mass. Sir, it will increase. अरे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं. देयर आर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स. Yes, sir, increase. There are more atoms, students. Yes, sir. Because some atoms have entered into the interstitial site. So what will be the result? Then mass, more particles mean more mass. Mass is due to particles. Mass किस लिए वहां पर? Empty space का mass थोड़ी है. Mass is the mass of the particles. There are number of particles have increased. So mass has increased. Then what will happen? So this defect will increase the density of the solid. Okay. ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर में, स्टूडेंट्स बी पे अटेंशन.
कौन सा डिफेक्ट बता रहा हूं मैं? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में these are all non-ionic crystal student, density will increase because there are extra particles in the interstitial sites. Vacant space पे आ गए। हो गया नोट? Yes, sir. अच्छा, आगे चलते हैं। As I said, vacancy and interstitial defects can be shown by non-ionic solids. ये important है, point नोट किया था। Mm-hmm. अब जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन द आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं कोई आयनिक सॉलिड बता रहा हूं तो उसमें क्या होते हैं? कैटायंस होते हैं Mm. और एनायंस होते हैं, ठीक है। और जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो क्या करते हैं? क्या होता है? चार्ज शुड बी बैलेंस्ड। Mm. कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। Yes, sir. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होएगी? इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। Negative charge. भाई अगर मैंने लिखा Na और Cl माइनस तो नंबर ऑफ प्लस चार्ज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ More नेगेटिव। negative charge. Opposite. तो बोथ द नंबर शुड बी इक्वल। Equal. चार्जेस शुड बी इक्वल स्टूडेंट, प्लस एंड माइनस इक्वल Mm. नंबर, देन ओनली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन्ड। Yes, sir. तो इसमें दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं आयनिक सॉलिड्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। Okay. ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। कौन कौन से होते हैं? एक एक मैं बता रहा हूं। फर्स्ट वन, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। Okay. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ? दिस डिफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। कंडीशंस क्या होंगी अभी देखने जा रहे हैं। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। सेकंड, इसमें क्या होता है कि स्मॉलर स्मॉलर आयन, जो स्मॉलर आयन कौन सा होता है? टेल मी। यूजुअली स्मॉलर आयन कैटायन ही होता है हाँ जी। भाई। कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयन स्मॉलर होता है एनायन से यूजुअली, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, ठीक है। द स्मॉलर आयन, ये दिस इज डिसलोकेटेड, Hmm. इट गेट्स डिसलोकेटेड, ठीक है, Okay. Yes, sir. फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू, एंड देयर इट गोज टू स्मॉलर आयन और कैटायन इज डिसलोकेटेड, ठीक है। वेयर इट विल गो? इट विल गो टू द इंटरस्टिशियल साइट। Okay. इंटरस्टिशियल साइट भाई, एक आयन स्मॉलर है, ठीक है, तो इट गेट्स डिसलोकेटेड, अपनी साइट से चले गया और कहां चले गया? इंटरस्टिशियल वॉइड में चले गया, जो वेकेंट स्पेस है। Yes, sir. यहां पर ये पैकिंग थी। दिस इज अ लार्ज, दिस इज स्मॉल, लार्ज स्मॉल, लार्ज स्मॉल। ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन है, दिख रहा है? ये लार्ज है, हाँ सर दिख रहा है। दिस इज अ स्मॉलर वन, ये वाला, हाँ जी। ये छोटा है, दिस इज बिगर। तो इसका अरेंजमेंट ऐसा था, लेकिन क्या हुआ? यहां से ये एक खिसक गया, देख रहे हो दिस हाँ। प्लेस? हम्म। इट हैज गॉन टू दिस वेकेंट स्पेस। ये दिख रहा है तुम्हें? यहां से कहां पहुंचा? ये वेकेंट आ गया, ये अपनी Yes, साइड से sir. जाके कहां चले गया? इंटरस्टिशियल साइड पर। ये स्मॉलर कैटायन था, ये वाला स्मॉलर कैटायन था यहाँ, ठीक है। Okay. स्मॉलर आयन था, कौन सा था? स्मॉलर आयन। स्मॉलर आयन इज यूजुअली कैटायन because positive charge ions are smaller than negatively charged. So what has happened? It has dislocated. It has gone where? This was the interstitial space. So it goes into the interstitial space, student. हम्म। So this type of defect is called Frankel defect. इसको क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये किसमें हुआ? आयनिक में, स्मॉलर आयन डिसलोकेट है। और थर्ड पॉइंट क्या है? व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल टेक प्लेस स्टूडेंट? दिस विल बी ऑब्जर्व्ड इन दोज आयनिक सॉलिड्स in which there is a large difference. There is a large difference. Important point to be noted, student. Large difference. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. This question has been asked. In which there is a large difference, student. किस चीज में large difference है? In size of the ions. Yes, sir. In size of the ion. मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देख रहे हो? इतना बड़ा और बहुत छोटा। तो इसलिए ये बहुत छोटा है, तो ये साइट में तभी जाएगा if it is smaller in size. Okay. Because interstitial sites you have seen in three dimensions, CCP, SCP, closed packing, octahedral and tetrahedral voids. That there is a radius size ratio which can fit into that.
Only if size is small, then it can go into tetrahedral or octahedral void. If size is large, it cannot slip into that. तो साइज के ऊपर अगर इफ साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये आएगा. नोट किया पॉइंट को. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहेगा एग्जाम में, एग्जांपल्स, गिव द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट स्टूडेंट? तो हमारे पास है ZNS, ठीक है, AGCL, वी हैव AGBR स्टूडेंट, AGI. देखो यहां पर क्या होता है कि ये Zn2 प्लस बहुत छोटा होता है और S2 माइनस लार्ज होता है. ये लार्ज है तो ये बड़ा है. देखो ये Zn2 प्लस का साइज है और ये S2 माइनस का साइज है. बहुत डिफरेंस है, देख रहे हो. Zn2 प्लस क्या है, स्मॉल है. इसी तरह ये Ag प्लस होता है, Ag प्लस ये स्मॉल होता है Ag प्लस, और Cl माइनस ये बड़ा होता है. देख रहे हो. तो जब डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा किसमें, साइजेस में, आयंस के, देन व्हाट डिफेक्ट विल बी देयर इन आयनिक सॉलिड्स, फ्रैंकल डिफेक्ट. बोलो यस और नो. बात समझ में आई? फ्रैंकल डिफेक्ट समझ में आ गया? जल्दी बताओ, कोई डाउट? नो सर. ये नोट किए पॉइंट्स? ऑलमोस्ट. यहां पर देखो, अब इन द एग्जाम उसने आपको एक डायग्राम दी ऐसे, ठीक है. ये डायग्राम दिख रही है? यस सर. एग्जाम में स्टूडेंट एक पेपर में उसने ऐसे आपको ऐसे डायग्राम दे दी, ठीक है. अब उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज दिस, व्हाट इज योर आंसर, और किस बेसिस पे आप आंसर करोगे. आप इसको यू हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. अब इसको ऑब्जर्व करो, इसमें क्या हो रहा है, एंड यू टेल मी व्हाट डिफेक्ट इज दिस एंड व्हाई. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में. ये देखो हाउ द पैकिंग इज टेकिंग प्लेस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ये माइनस बड़ा प्लस छोटा, ठीक है, प्लस माइनस. ये रेगुलर अरेंजमेंट है. यहाँ पे ये कहाँ गया, ये है नहीं, यहाँ पर मिस हो गया. यहाँ से ये मिसिंग है, दिख रहा है? हाँ. तो ये कहाँ पर गया, ये कौन सा मिसिंग हुआ है, प्लस या माइनस, जल्दी बताओ. सर यहाँ से हुआ मिसिंग, प्लस सर. प्लस छोटा, मिसिंग है. ये मिसिंग है. हाँ. वेयर इट इज गॉन, कहाँ गया ये? यहाँ पे नीचे उसके, ये यहाँ पर आया एक. यस सर. यू सी दैट, इस पॉइंट पर दिख रहा है. यस देख रहा. ये वाला यहाँ आ गया. ये व्हाट इज दिस प्लेस, इसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया. तो प्लस यहाँ से एक आउट हुआ, इसका साइज स्मॉल है, इट हैज शिफ्टेड टू वेयर, इंटरस्टिशियल साइट. यस सर. तो ये फिर कौन सा डिफेक्ट हुआ? सर ये हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल. तो एग्जाम में, इन द एग्जाम स्टूडेंट दे विल गिव यू अ पिक्चर एंड विल आस्क यू, बताइए ये कौन सा डिफेक्ट है, कैन यू आइडेंटिफाई? यस सर. फ्रैंकल. हाउ विल यू आइडेंटिफाई? इफ यू वांट ऑब्जर्व प्रॉपर्ली, कुछ भी नहीं दिखेगा. बात समझ में आ रही? यस सर. अगर आप, इफ योर माइंड इज नॉट पेइंग अटेंशन स्टूडेंट, concentration is not there, then how will you be able to answer? Nothing. यहाँ पे मगिंग है, क्या मगिंग है मेरे पास? I have to answer according to the given information student. जो facts मुझे given है उसी बेस को मुझे I have to observe it and give an answer. Yes sir. हो गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट हुआ? मैं 4 पॉइंट्स लिखे हैं जितने भी. अब 5th पॉइंट क्या है? क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी. बताओ डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा इन द केस ऑफ Frankel defect student. What will happen? Will it increase the density, decrease the density, or density will remain the same? Tell me fast. 30 seconds. Sir, it'll be the same, sir. क्योंकि इसमें एक है जिसमें बोला था वो, it's in the atom. Number of particles is the same in the lattice. कोई भी no particle is coming in or out. ना तो कोई आउट आया ना कोई बाहर गया.
तो पार्टिकल्स का नंबर सेम है, Yes, same exactly. सेम है, डेंसिटी सेम रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन द डेंसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। Okay, sir. तो फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट चेंज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। Mm-hmm. देखो इन असर्शन में ही विल फॉर्म ए स्टेटमेंट लाइक दिस, दैट इन फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम। तो ये फैक्ट है, तो Yes, इज इट sir. राइट और रॉन्ग? Right, sir. राइट। तो फिर उसके नीचे एक रीजनिंग देगा, ठीक है, एंड देन इफ द रीजनिंग इज सपोर्टिंग द असर्शन देन चॉइस ए। मान लो वो both are correct but the reasoning is has nothing to do with this assertion then B answer. And if Hmm. four choices we will explain you when we talk of reasoning and asserting questions. I will explain how to answer reasoning and asserting questions. I will also explain how to answer paragraph questions in the paper, students, in the coming lectures. Clear? ये यहाँ तक Yes, sir. स्टोरी क्लियर है? आगे चलूं? Yes, 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 sir. Yes, sir. नोट कर लिया? हाँ जी. अच्छा, अब वो कह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड, कौन सा? फ्रैंकल वाला। वाई आल्सो कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? डिसलोकेशन। वाई? बिकॉज देयर इज अ डिसलोकेशन of the smaller particle from the crystal point, lattice point to the interstitial site. ठीक है? और it is shown by ionic substances in which there is a large difference in the size of the ion. Very important point. Example important. Example important. ठीक है? Yes, sir. यहाँ पर हमने एक और डायग्राम आपको दी एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन उसने पेपर में दिया, ये दिया। He is asked you student, in what type of defect is this? What type of defect is this? जल्दी से बताओ, ये कौन सा डिफेक्ट है जो मैंने बनाया यहाँ पर? What type of defect is this, students? क्या दिख रहा है? What you can see, what you can observe here? Anything missing? Yes, sir. I see two. क्या नहीं है इसमें? Two missing, sir. दो cations. कहाँ पे 2 cations मिस हुए हैं? Sir, एक top पे. टॉप कहाँ पर है? अच्छा, आप दूसरा क्या कहते हैं? मैं देख रहा था, कहते हैं इसको बोला कहते हैं इसके नीचे वाला भी, नीचे वाला नहीं कहते हैं। अरे ये वाला कह रहा हूँ मैं, ये जो दिया। हाँ, सर ये तो वो क्या कहते हैं, ये तो वो है अपना फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि इसमें एक एजी है जो ये वाला नहीं है यहाँ। यहाँ। ये कहाँ गया? यहाँ पे There it is gone. सर टुवर्ड्स द राइट। ये वाला यहाँ से यहाँ चले, डिस्लोकेट हो गया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें Ag प्लस वाला जो था, it has gone to interstitial site, यस सर। but it is still inside the crystal lattice. अभी भी it is inside the crystal, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ जी। Density will remain the same. नोट करो। कॉपिंग सर। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। इसका मतलब देखो, रिमेंबर करिए, शॉर्ट हो गया। क्या शॉर्ट हो गया? शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या शॉर्ट हुआ? देखो इसमें क्या हुआ है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब वैकेंसी क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है? वैकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, इसमें देखो देयर सर्टेन आयंस आर मिसिंग, और बिकॉज इक्वल number of positive
or equal number of negative charges are missing, Yes, sir. or number of ions missing, because the electrical neutrality has to be maintained. Okay. अगर एक प्लस गया तो एक माइनस भी आउट है, मिस हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ कम हो गए हैं, क्या हुए हैं, कम हो रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पर. हाँ जी. Yes, sir. सो देयर इज अ मिसिंग आयंस, मिसिंग स्टूडेंट. कहाँ पे मिस हो रहे हैं देखो, माइनस प्लस माइनस, ये वाला नहीं है, ये मिस है, ये वाला यहाँ दिख रहा है. फिर माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे कौन सा मिस हुआ है, प्लस वाला. Okay. और हियर प्लस के बाद ये नहीं है, ये कौन सा होना था, माइनस मिसिंग है, यहाँ पे प्लस मिसिंग है. और आगे भी वी हैव टू ऑब्जर्व स्टूडेंट, ये भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे ये नहीं है. नेगेटिव के बाद ये पॉजिटिव मिसिंग है, एंड ये वाला कौन सा, पॉजिटिव के बाद में नेगेटिव मिसिंग है. ठीक है. Yes, sir. तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. देखो, हाउ विल यू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड. न्यूट्रलिटी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट, हियर देयर इज अ पेयर व्हिच इज मिसिंग, देयर इज अ पेयर व्हिच इज मिसिंग स्टूडेंट. तो ये किस, व्हाट इज द कंडीशन, दिस विल हैपन इन आयनिक सॉलिड्स. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, विच आयनिक सॉलिड स्टूडेंट, इन विच द साइज ऑफ स्टूडेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है. इन विच Yes, sir. साइज ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर. दोनों में सिमिलरिटी है, Yes, sir. ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दे विल बोथ बी मिसिंग. फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स, ही विल आस्क यू एग्जाम्पल्स इन द पेपर. तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, देखो, जो एल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं, एल्कली मेटल हैलाइड्स, व्हाट आर एल्कली मेटल हैलाइड्स, NaCl है, KCl है, एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं. सीजियम, एल्कली मेटल हैलाइड, यू नो दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज. सबसे ज्यादा Yes, sir. लार्जर साइज वाले कौन से हैं स्टूडेंट, एल्कली मेटल्स, और उधर हेलोजन है. तो ये वाले एग्जांपल हैं इसके, ये वाले एग्जांपल हैं स्टूडेंट, NaCl, KCl, Cesium. तो these are some of the examples students. और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इसमें आया, बताओ कि इसमें डेंसिटी विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम. Sir, इसमें it will decrease. है, Decrease, sir. डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज डिक्रीज्ड. So when you have lesser density is mass per unit volume, less particles means less mass, तो density decrease हो जाएगी. और अभी तक इन दोनों में क्या देखा, there is a compound student which is present in both the cases. AgBr देख रहे हो, Yes, यहाँ sir. भी है और यहाँ भी है. The question, there is a question in the paper that AgBr shows both Yes, sir. कौन से, फ्रैंकल And short. एंड शॉर्ट की डिफेक्ट. Short key defect. तो शॉर्ट की को याद करने का तरीका, शॉर्ट हो गया मतलब वेकेंट हो गया, कम हो गए. और फ्रैंकल में क्या हुआ, इंटरस्टिशियल साइड पे चले गया, बस दैट्स ऑल. याद हो गया. देखो, एक दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन. ये सारे पॉइंट्स नोट किए तुमने, Yeah. Yes, sir. नोट करने हैं. अच्छा, आगे चलते हैं. आगे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट हम, पेयर ऑफ एनायन कैटायन वैकेंसीज. ठीक है, ये हुआ था, पेयर ऑफ एनायन एंड कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी, किसमें क्रिएट होंगी, शॉर्ट की में. ठीक है, शॉर्ट की में, शॉर्ट की डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, SHOOTKY, शॉर्ट की डिफेक्ट. This has been asked so many times. Electrical neutrality means number of missing cation and anions are equal.
डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जांपल बार बार पूछता है वो, इसलिए बार बार लिखे गए हैं। देखो ये सब एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे यस देखो सर। पिक्चर, ऐसे उसने पेपर में पिक्चर दे दी आपको, दे दी। यहाँ पे क्या हुआ है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, ये है ही नहीं, ये वाला मिसिंग है। विच आयन इज मिसिंग, नेगेटिव वाला मिसिंग है। नेगेटिव। यस सर। और यहाँ पे क्या हुआ है, नेगेटिव, और ये मिसिंग है। ये कौन सा है, नेगेटिव के बाद कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिसिंग, यस यहाँ सर। पे नेगेटिव मिसिंग। ये NaCl का है। NaCl देखो, in the case of NaCl what we are seeing, there is some missing ions of positive and missing ion of chloride ions। तो फिर NaCl में कौन सा डिफेक्ट दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन आ गया, which defect is shown by NaCl, what is your answer? जल्दी से बताओ क्या आंसर लिखोगे पेपर में। भाई NaCl कह दिया, सीजियम क्लोराइड कह दिया, KCl कह दिया, बताओ कौन सा डिफेक्ट दिखेगा इनमें। NaCl। ये तीनों ही बता दिया मैंने, सर शॉर्ट की डिफेक्ट। अरे क्वेश्चन कैन बी पुट इन मेनी वेज। यस सर। ये पेपर में आया था कि 4 चॉइसेस थी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज शॉर्ट की डिफेक्ट। 4 चॉइसेस, उसमें कौन सा हम लिखेंगे, ये एल्कली मेटल हैलाइड से होते हैं, दे विल शो शॉर्ट की डिफेक्ट। ये कौन से हैं, एल्कली मेटल हैलाइड से, नजर आ रहे हैं। यस सर। ये क्लोराइड्स वाले हैं, क्लोराइड्स हैं यहाँ पर। हैलाइड्स कौन से, एल्कली मेटल कौन कौन से हैं, सोडियम, ये सोडियम एल्कली मेटल है, सीजियम और पोटेशियम। ये लार्जर साइज के होते हैं कैटायंस, इनके लार्ज साइज होता है कैटायंस का यहाँ, इसीलिए ये शो करते हैं। यस सर। बिकॉज द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तब ये डिफेक्ट होता है। एनी डाउट? नो सर। चलो आगे चलते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक टेबल दी है, उसने पेपर में पूछा क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंसेस स्टूडेंट बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिया जा रहा है। यस सर। तो क्या क्या बताया मैंने, शॉर्टकी occurs in ionic where difference in size between cation and anion is small, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट occurs in those where size of anion is quite large as compared to that of cation, ठीक है। यस सर। ये दोनों सेम साइज के हैं, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे लार्ज डिफरेंस है कैटायन और एनायन में, ठीक है। साइज में लार्ज डिफरेंस है, दिख रहा है। शॉर्ट की डिफेक्ट, बोथ कैटायन एनायन लीव द सॉलिड क्रिस्टल, दोनों ही आउट हो गए। फ्रैंकल में स्मॉलर लीव्स द ओरिजिनल साइट, ठीक है, कौन सा, स्मॉलर वन। एंड ड्यू टू वैकेंसी फॉर्मेशन शॉर्ट की डिफेक्ट रिड्यूस डेंसिटी कम हो गई, किसमें, शॉर्ट की में। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल बिफोर एंड आफ्टर फ्रैंकल सेम, नो एटम लीव्स, कोई भी एटम नहीं गया। कॉमन मटेरियल्स, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये देखो फिर एग्जांपल्स आ गए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो यू हैव नोटेड, नोट हो गया। और AGBR दोनों में है, देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन पेपर में आया। यस। नोट हो गया, हो गया सर, हो गया। चलो करते जाओ करते जाओ। अब नेक्स्ट पे आ गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। देखो व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी क्या होता है, मैंने बताया कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन फॉरेन एटम, दैट इज एटम्स डिफरेंट फ्रॉम होस्ट एटम्स आर प्रेजेंट। तो आउटसाइड से कोई इम्प्योरिटी ऐड की है आपने स्टूडेंट, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि आप मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है, इसके अंदर क्या क्या आयन थे, सोडियम और क्लोराइड आयंस, और सोडियम का चार्ज कितना है, +1। यस सर। ये +1 में है। एंड इसमें आपने कोई फॉरेन एटम, मतलब फॉरेन बाहर से, यू आर एडिंग सम सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल यू आर एडिंग स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है, स्मॉल अमाउंट,
आपने Yes, क्या sir. ऐड कर दिया, स्मॉल अमाउंट। किसका? स्ट्रॉन्शियम का वैलेंसी कितना है, 2+, इसकी +1 है। तो अब क्या होगा कि ये सोडियम प्लस और सोडियम प्लस हैं, Mm-hmm. ये वाले कितने हैं, 2 दिख रहे हैं, 2। Yes, sir. अब स्ट्रॉन्शियम आ रहा है, ये स्ट्रॉन्शियम प्लस आ रहा है, इसके तो चार्ज 2+ है, तो ये 2 को आउट करेगा, तो एक तो वैकेंसी रह जाएगी और एक में स्ट्रॉन्शियम आ जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ एज मेनी एटम्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम विल एंटर, that many vacancies will be created. It will create vacancies. What it will do, it will create vacancies also. तो मिसिंग स्पेस क्रिएट कर देगा, वैकेंसीज क्रिएट कर देगा। तो इसमें लिखा फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट इंप्योरिटी। एलियोवेलेंट का मतलब वैलेंसी डिफरेंट है, एलियोवेलेंट वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2+ है और इसकी +1 है। तो चार्ज तो बैलेंस करना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हैज टू बी मेंटेन्ड। So ions with oxidation state different from that of the host ion, ये होस्ट है, NaCl होस्ट है, और वो गेस्ट है जो बाहर से आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. अरे इन यू आर लिविंग इन ए होम, व्हेन समवन कम्स फ्रॉम आउटसाइड वो गेस्ट है, यू आर ए होस्ट। तो NaCl का है क्रिस्टल, NaCl होस्ट है, इसके अंदर दूसरा आ रहा है बाहर से, तो वो गेस्ट है। तो Mm-hmm. गेस्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम दी होस्ट, तो वो इंप्योरिटी क्रिएट कर रहा है, इंप्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है। Yes, sir. It results in the introduction of cationic vacancy। इससे क्या रिजल्ट मिला, impurity defect creates cationic vacancies। बोलो क्रिएट कर रहा है cationic vacancy, यस और नो? Yes, sir. ये cationic vacancy क्रिएट होगी, कटायन आउट हो गया, तो ये ठीक है। तो हमने क्या किया है कि Na+ सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूटेड बाई Sr2+, Yes, sir. and it will create cationic vacancy, it will create cationic। यहाँ पे देखिए Na+Cl-, Na+Cl-, ये स्ट्रॉन्शियम आ गया 2+, Mm-hmm. तो 1 strontium plus will take the place of 1 sodium and 1 sodium plus is missing। Yes, sir. ये मिसिंग हो गया इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिक। तो ये क्या क्रिएट हो गई है, cationic vacancy क्रिएट हो गई है। तो how many cationic vacancies, as many as Sr2+ coming। if 10 Sr2+ Yes, sir. comes, there will be 10 cationic vacancies। if 20 comes, 20 cationic vacancies। तो Yes, क्वेश्चन sir. पूछेगा वो कि कितनी cationic vacancies क्रिएट होगी, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ cationic vacancies, ठीक है। नंबर ऑफ cationic vacancies विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Sr2+, ठीक है, नंबर ऑफ Sr2+ विच आर रिप्लेसिंग द सोडियम प्लस। बोलो सही है गलत है, जल्दी से सही है, बताओ। सही है, सही है, सही है, सही है। एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल भी पूछे जाते हैं। ये पूछा था उसने कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट क्वेश्चन is shown when CdCl2 is added to AgCl। आप बताओ क्या आंसर लिखोगे, जल्दी से बताओ। अब AgCl का क्रिस्टल था लैटिस, उसके में क्या ऐड किया तुमने, कैडमियम क्लोराइड। Yes, sir. तो व्हाट डिफेक्ट इज क्रिएटेड, कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया? देखो Ag+ और Cl- में कैडमियम क्लोराइड ऐड किया है एज ए, ये फॉरेन मटेरियल है, ये फॉरेन एटम है, यानी क्या ना फॉरेन एटम। कौन सा आ रहा है, कैडमियम 2+ आ रहा है। और इसमें कौन कौन से थे तुम्हारे, AgCl का भी मैंने पीछे दिखाया था, Ag+ थे और Cl- थे, इस तरह से थे ये। और क्या था, Ag+ और Cl-, Ag+
और Cl माइनस, इस तरह से क्रिस्टल थे, Cl माइनस Ag प्लस, Cl माइनस Ag प्लस, ठीक है, Cl माइनस यस सर। Ag प्लस, इस तरह का था। अब इसमें कैडमियम 2 प्लस आ रहा है, तो 1 कैडमियम का चार्ज कितना है, +2, और सिल्वर का चार्ज कितना है, +1। तो क्या होगा, ये एक और एक 2 को आउट करेगा, तो क्या करेगा फिर, जितने ये आएंगे इट विल आल्सो क्रिएट कैटायनिक वैकेंसीज। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या लिखना था मुझे, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। यस सर। तो इससे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, जल्दी से बताओ, डेंसिटी को क्या हुआ इससे, डेंसिटी बढ़ी या कम हुई स्टूडेंट्स, सर डिक्रीज। decrease हो गई, because as you can see there are vacancies which are created, so whenever vacancies will be created student, density will decrease। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, आने वाले हैं, तो इनमें डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, डेंसिटी डिक्रीजेस स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये बहुत बार आ चुका है और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, शॉर्ट की, फ्रैंकल, ये सारे डिफेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पूछे जाएंगे। और आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन विद डायग्राम्स एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विल बी आस्क्ड टू यू इन द पेपर। ये क्वेश्चन ये है, दे विल बी आस्क्ड टू यू इन द पेपर स्टूडेंट। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? यस सर। Or you have seen the questions are put like what is the consequence on the density student. Here they will ask you how many vacancies will be created, cationic vacancies will be created, and all these are important points to be noted students. We should be very very careful and understand each and every word. In case of any doubt you can ask me, no problem students. You have any doubt? नो सर। ठीक है, फिर then I'm stopping at this point because there is a next part of it which will be done in the next lecture, so that I want to finish and then I will start explaining to you how will we answer questions based on paragraphs, and how will we do reasoning and assertive question, how will we do multiple choice questions in the coming papers. ये all important points will be discussed students in the coming lectures. So tomorrow you are available in the morning? यस सर। ठीक है, then फिर I will try to have a class at 1 or 12. I will send you the message in the WhatsApp. So Okay, keep sir. the notes with you all the time, and whatever question answer I'm sending to you in the YouTube student, you will go through them and make your notes. I will be discussing most of the questions. Large questions will be discussed. यस सर। So we have to prepare for the final paper. We just cannot pass time, and we must understand each and every word student. There will be question based on that. ठीक है, okay यस then, सर। good night, I will see you in the next class. बाय सर। Okay, bye.